हालेलुया, Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुबह का समय प्रभु का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर में मौका दिया है। Thanks be to God. God has given us an opportunity to come before His gracious presence this morning time. आया हुआ सारे भाई बहन बच्चों को प्रभु के नाम से नमस्कार। And all who have come here, all brothers and sisters, I greet you in the matchless name of Lord Jesus Christ. आज प्रभु भोज हमारे बीच में है। Today we have the Lord's table among us. पिछले संडे होना था, Last week we couldn't do. लेकिन बारिश होने का कारण कुछ कम लोग आए हैं, इसलिए हमें किया नहीं। Due to the cyclone and storm, we could not conduct. आज हमारा संडे स्कूल का एग्जाम भी है, Today we have the exam of our Sunday school. इसलिए आराधना थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। So we would end our worship service early. तो हमें जल्दी जल्दी मैसेज में जाएंगे। So we will come to the word of God. सब लोग प्रार्थना का साथ बैठे। And let's be in an attitude of prayer. हम विभिन्न भाषा वाला है, We are people of different languages, लेकिन प्रभु हमारे मध्य में है। but Almighty God is among us. हमारा कोई भी भाषा हो वो समझ लेते हैं। And whatever may be our language, God will know it. हालेलुया। Hallelujah. हमें पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार Let's turn to the Gospel of John 11 अध्याय and chapter 11, उसका 28 वाक्य। verses 28. यह कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। बस। இவைகளை சொன்ன பின்பு அவள் போய் தன் சகோதரியாகிய மரியாளை ரகசியமாய் அழைத்து, போதகர் வந்திருக்கிறார், உன்னை அழைக்கிறார் என்றாள். କହିଲା ଉତ୍ତର ସେ ଯାଏ ଆପଣା ଭଉଣୀ ମରିୟମକୁ ଗୋପନରେ ଡାକି କହିଲେ, ଗୁରୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ ତୋତେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। When she had so said, she went her way and called Mary, saying, the master's servant. हम सब लोग ये चैप्टर को जानते हैं। We all know this chapter very well. लाजर मर गया। Lazarus is dead, लाजर थे और दो बहन लोग थे उनको। and Lazarus and his two sisters were there in the family. यीशु मसीह ये परिवार से बहुत प्यार करता था। And Jesus loved this family a lot. उधर जाते थे, वो लोग उनको स्वीकार कर कर खाना खिलाते थे। He used to visit them and have fellowship with them. तो अच्छा परिवार था, Good family. लेकिन अचानक वो बीमार हो गया भाई। But suddenly that brother became ill, तो ये बहन लोग यीशु को संदेशा भेजा, and these sisters they sent a message to Jesus. लेकिन उसी वक्त यीशु नहीं गया है। But Jesus didn't go at the set time. यीशु जहां पर था उधर और 2 दिन रुक गया। And where Jesus was, he stayed there for 2 more days. यीशु जाने का कोई जरूरत नहीं था। And there was no need for Jesus to go. वो वहां से एक वचन बोलने से वो लाजर चंगा हो जाते हैं। And if Jesus would have said one word from where he was, Lazarus would have been healed. लेकिन प्रभु ने ऐसा किया नहीं, But Jesus didn't do so. और वो गया भी नहीं। And Jesus didn't go also. उसमें प्रभु का कुछ योजना था। So there was some intention of Jesus behind it. प्रभु का नाम को महिमा करने के लिए, And for the glory of God. तो प्रभु ने कुछ कर रहा था। So God, Jesus was doing something there. लाजर मर गया। Lazarus died. उसका बाद 4 दिन का बाद उधर पहुंचते हैं। And so after 4 days, Jesus is reaching their house. कभी कभी हम लोग भी प्रार्थना करने से Sometimes when we also pray, एकदम उत्तर नहीं मिलते हैं, instantly we will not receive the answer. उसमें चिंता नहीं करना है। So we should not have any apprehension about it. उसी में भी परमेश्वर का कुछ का महिमा का कारण है। Definitely there might be some work of God behind it. तो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। If God wants to do some work in our lives. तो लाजर मर गया। So here we see Lazarus died. तो 2 दिन का बाद यीशु वो बेथनिया में पहुंचे। And after 2 days, Jesus reached in Bethany. तो अभी 4 दिन हो चुका है। And now 4 days are passed away. वो गांव में पहुंचा, He reached the village तो एक जगह में बैठा। and he sat at one place. तो मार्था को खबर मिल गया, And Martha came to know about it. तो उसका लाजर का बड़ी बहन है, And she is the elder sister. वो यीशु के पास आया। And she came to वो Jesus. कहते हैं, प्रभु तू हमारा इधर होने से हमारा भाई
मरता नहीं था। And she is telling to Jesus that, oh Lord, if you would have been here, my brother would not have अभी died. भी मैं विश्वास करता हूँ, And now also I believe अगर तू कुछ पिता से मांगेगा that whatever you ask of the Father, तुझे मिल जाएगा। that you will get. यीशु ने कहा तेरा भाई जी उड़ेंगे। And Jesus said that your brother will live. उसने कहा हाँ, लास्ट पुनरुत्थान में वो जी उड़ेगा कर कर मैं विश्वास करती हूँ। Yes, my brother will resurrect on the last resurrection day. यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। And Jesus says, I am the life and the resurrection. तो जो लोग मुझे पर विश्वास करेंगे And those who believe on me, वो मरने से भी जिएंगे। even though they die, they will live. तो अभी फिर भी उधर बैठे हैं यीशु। And still Jesus is sitting there. तो वो मार्था जाकर अपना बहन मरियम को कहा, And Martha went and told to Mary वो गुरु आया हुआ है, that the teacher has come तुझे बुला रहेगा and he is calling you. मेरा संदेश वही है, And my message today is that गुरु हमारा मध्य में है, our teacher is among us तो वो हमको बुला रहेगा है। and he is calling us. प्रभु हमारे मध्य में है, And God is among us हर एक व्यक्ति का नाम लेकर वो बुला रहेगा and है, is taking individually everyone's name and is calling out. उसका शब्द हमें सुनना है। And we have to hear his voice. हालेलुया। Praise God. तो वो हमको बुला रहेगा है। And he is calling to us. बाइबल का आरंभ से लेकर पढ़ेगा तो And when we read from the beginning of the Bible, परमेश्वर मनुष्य को बुलाते रहेगा। and God keeps on calling the human beings. अब जेनेसिस 22 अध्याय में पहला वाक्य में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। Genesis 22:1, God calls Abraham. तो ये अब्राहम, Oh Abraham. तो परमेश्वर अब्राहम ने कहा मैं यहाँ पर हूँ। And Abraham says, I am here. मैं यहाँ पर हूँ। I am here. जब वो परमेश्वर उसको बुलाया, And when God called him, बोला मैं तेरे उपस्थिति में हूँ। and he is saying that I am in your presence. हमको परमेश्वर बुलाएगा तो And if God calls us हम today, परमेश्वर को उपस्थिति में होना है। and we should be in the presence of God. तो अब्राहम कहते मैं यहाँ पर हूँ, क्या आज्ञा है? And Abraham says that I am here, what is your command? वैसे ही हम लोगों को भी बुलाने से कहना मैं यहाँ पर हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। And here he says, I am ready to listen to you. जब वो शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया, पौलुस को, When God called Paul, ये शाऊल तुम मुझे क्यों सताते हो? oh Saul, why do you trouble me? प्रभु ने शाऊल ने पूछा तुम कौन है? And Saul is asking a question, who are you, O Lord? यीशु ने कहा इसको तू सताते यीशु में हो। And Jesus and Saul is asking to the Lord, तो कह दे क्या आज्ञा है? what is the command? Please tell me. ये 9 अध्याय में नहीं हमें पा सकते हैं, We can't find this in chapter 9. लेकिन 22 अध्याय में हमें देख सकते हैं। When we read Acts 22, we can find it 22 there. का 10 पढ़ने से उधर लिखा है प्रभु क्या आज्ञा है मुझे बता। And 22:10 when we read, we find that he says that what is your command? Please tell me. पूछ लेगा क्या आज्ञा है मुझे बता दे। And he's telling that what should I do? Tell me. परमेश्वर ने आपको बुलाएगा तो, If God calls you, परमेश्वर ने आपको दर्शन देने से, if God gives you a vision, उसका कुछ उद्देश्य होगा। then there will be a purpose behind it. गुरु आया हुआ है, Because the teacher has वो आपको बुला लगा है, he is calling you, तो आपका दुख को दूर करने के लिए, and for your sorrows to go away, आपका पीड़ा को दूर करने के लिए for your sorrows to go away, गुरु आया हुआ है। and your Lord has इसके come. लिए गुरु बुला लगा है। And for that the teacher is calling you. मोशे को परमेश्वर ने बुलाया। And God called Moses. जो यात्रा पुस्तक 3 अध्याय उसका 4 वाक्य जो पढ़ते हैं, Exodus 3:4 when we read, तो उधर लिखा है हे मोशे and Moses says, here I am. मतलब जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया, And so whomever God वो called, पढ़ते हैं मैं तेरे उपस्थिति में हूँ। and they say that I am in your presence. वो मिस्र देश में भेजने के लिए परमेश्वर ने मोशे को बुलाया। And God is calling Moses to send him to Egypt.
बहुत बड़ा दायित्व उसको दे रहा था। A huge responsibility God is placing इस्राएल upon लोगों को साथ लेने का दायित्व उसको दे रहे थे। to deliver the people of Israel from the land of Egypt. हमको भी परमेश्वर बोला लगा है, So today उसका शब्द सुनना है। we should listen to His voice. हमें उसका शब्द सुनने से ही हमें आशीष पाएंगे। And when we listen to His voice, then only we will receive His blessing. हर वक्त में परमेश्वर को बुलाते हैं। And every time God calls us. और 751 में लिखा है, Psalm 51 says like this: सूर्य का उदय से लेकर from the rising of the sun अस्तमय तक till the going down of the sun, तो परमेश्वर में पृथ्वी को बुलाते हैं। God calls the earth. तो परमेश्वर पृथ्वी को बुला लगा है। And God calls the earth. इसका मतलब है कि पृथ्वी में जो मिट्टी और पत्थर जो पेड़ वृक्ष है वो उसको बुलाया कर मदद ली है। And it doesn't mean that God is calling out to the stones and the trees and plants that He has पृथ्वी created. में रहने वाला मनुष्य को बुला लगा। God is calling to the human beings He has placed in the earth. तो प्रभु ने बुला लगा है। And God is calling out. मत्ती 11:28 में यीशु ने ऐसा कहा, Matthew 11:28, Jesus says like this: ये परिश्रम करने वालों, O you who labor, बोझ से दबे हुए लोगों, and those who are cumbered with their मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। to me, and I will give you rest. तो हम परिश्रम से दबे हुए लोग हैं। तो And if we are burdened with a load of care, तो परमेश्वर आपको बुला लगा है, then today God is calling you. बुला लगा है भाई बहन, And He is calling you today, brothers and sisters, उसका इच्छा को पूरा करने के लिए, and to fulfill His wish, उसका चरणों में चलने के लिए for us to walk in His will. आपको बुला लगा है। And God is calling us. आपको नाम लेकर पुकारते He हैं, calls our name and He calls. जैसे याकूब को उसका नाम लेकर पुकारा, Like God called Jacob by his name. हमको भी सबको हमारा नाम लेकर परमेश्वर पुकारते हैं। And today God is calling all of us individually by taking our name. हमारा नाम सब परमेश्वर को मालूम है। So our names God knows. तो जब न्यायों का पुस्तक 6 अध्याय पढ़ेगा तो When we turn to Judges 6, उधर एक गिदोन को देख सकते हैं। we find Gideon there. वो परमेश्वर ने गिदोन का कहा, And God is telling to Gideon, तो एक काम करना है, you should do one thing. तेरा बाप को 2 बैल है, And your father has 2 bulls. उसका जो छोटा बैल है, And the younger bull that he has, कितना वयस है उसका? how many years it is old? बोलिए, वो बैल का कितना उम्र किसी को मालूम नहीं? उसका उम्र है 7 वर्ष। And the younger bull was 7 years old. परमेश्वर देखे करोड़ों करोड़ों जानवर ये पृथ्वी में है। So see, crores of animals are there in this whole world. तो परमेश्वर ने गिदोन का पिताजी क्या बैल को उम्र को याद है, But God remembers the age of Gideon's father's bull. तो हमारा भी परमेश्वर ने हमारे नाम याद रहते हैं। And God also remembers our name. तो जो शमूएल मतलब न्यायों का पुस्तक 6 अध्याय उसका 25 वाक्य, Gideon, Judges 6 and 25. फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 60 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी को बस हो गया, पढ़ो। அன்று ராத்திரியில் கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ உன் தகப்பனுக்கு இருக்கிற காளைகளில் 7 வயதான இரண்டாம் காளையை கொண்டு போய் अनंतर सिंही रात्रीने सदाप्रभु ताकू कहिले, तुम्ही आपणा पिताला जुबा करूको अर्थात 7 वर्षाचे द्वितीय गोवंशକୁ निय. तो परमेश्वर गिदोन का पिताजी का बैल का उम्र जानते हैं। So God knows the age of Gideon's father's bull. तो हमारा नाम वो नहीं जानते हैं, So doesn't He know our name? हमारा नाम वो जानते हैं। He knows our name. परमेश्वर हमको नाम लेकर पुकारते हैं। And God takes our name and calls us. तो एक बार चुंगी लेने वाला पत्रोस को पूछा, तुम्हारा गुरु चुंगी देता है कि नहीं? And once God, टैक्स। तो तुम्हारा गुरु
चुंगी देता है कि नहीं? And once it was asked of the Lord that whether your Lord pays the tax or not. पतरस ने कहा हम चुंगी देते हैं। And Peter says that yes, my Lord pays the tax. पतरस यीशु जहां उधर पहुंच गए। And where Jesus was, Peter reached there. पतरस कुछ कहने से पहले प्रभु पूछा। Before Peter asking God, the Lord, and Jesus is speaking to him. पतरस शिमोन जो चुंगी लोग लेते हैं किसे? बेटों से क्या दासों से? Simon, people collect tax from the sons or from the servants. पतरस ने कहा दासों से लेते हैं। And Peter says that from the servants. फिर भी हम उनको ठोकर का कारण ना बने। And let's not be a stumbling block for them. कांडा ले लो, Take a fishing rod समुद्र में जाकर दाल पकाओ, and go and put it on the sea. जो मच्छी पगले मिलेगा And the fish that you receive first, उसका मुंह में एक सोने का सिक्का है। and you will find a coin in its mouth. तो वो उठाकर मेरे लिए और तेरे लिए चुंगी देना। Take that and give as tax for you and for me. देखिए गलीला समुद्र का नीचे से जा लगा हुआ मच्छी का मुंह का सिक्का को यीशु ने देखा। Just imagine Jesus saw the coin that was there in the mouth of the fish that was swimming in the Galilee Sea. तो ऐसा है तो हमको नहीं जानते हैं। If it is so, then doesn't he know our आप name? थोड़ा देखे Psalm 139 का एक तो ऐसा देखे। And let's turn to Psalm 139. तूने मुझे जांच कर जान लिया है और नहीं थे। और तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। बस கர்த்தாவே, நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். என் உட்கார்தலையும் என் எழுந்திருக்கிறதையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். என் நினைவுகளை கூர்ந்து அறிகிறீர். पढ़ो। நான் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறேன். என் வழிகளெல்லாம் உமக்கு தெரியும். बस हाँ वही बढ़िया। हे सदा प्रभु तुम ही मोरा अनुसंधान करियछ मोरा परिचय नेयछ तुम ही मोरा बसिबार ओंठिबार जानुछ तुम ही दूरରୁ मोर संपर्क बुझुछ तुम ही मोर गमन और शयन अनुसंधान करवछ आ मोर सकल गति जानुछ। तो दाऊद इधर कह रहा है Here David is speaking. तो मुझे जांच कर जान लिया। O Lord, you have searched me and known me. मैं जो बैठते हैं उड़ते हैं सब कुछ जानते हैं। You know my sitting down and my rising up. इतना भी मेरा मन का जो चिंता है वो भी तू जानते हैं। And not only that, you know the thoughts of my मेरे mind. मन का चिंता है And you understand my thought. वो भी तू जानते हैं। That also you know. हमारा मन का जो चिंता है वो परमेश्वर जानते हैं। God knows the thoughts of our mind. एक बात अब याद रहना है, And one thing we should remember. हम कहाँ पर जाते हैं, Where do we go? क्या करते हैं, What do we do? क्या सोचते हैं, What do we think? ये सब परमेश्वर जानते हैं। And all that God knows. इसलिए हम परमेश्वर का हाथों में हमारे जिंदगी पूरा समर्पण करना है। Therefore, in the hands of God, we should surrender our lives और completely. मेरा विषय गुरु तुमको बुला रहा है। So my topic today is the teacher calls us. हमको सबको परमेश्वर बुला रहा है। And all of us are being called by the Lord today. आज आप उसका शब्द सुनना है। And you have to hear His voice today. जैसे याकूब को नाम लेकर बुलाया, And like God called Jacob by his तो name, परमेश्वर हमको भी नाम लेकर बुलाते हैं। likewise God is calling us also by name. अगर आप परमेश्वर आपको कभी बुलाए नहीं, If God hasn't called you any time, परमेश्वर बुलाए लेकिन आप उसका शब्द सुने नहीं, means God called but you didn't hear it, आप प्रार्थना करें, then you pray, प्रभु तूने मुझे बुलाए तो मैं उसका शब्द सुनो। and that God you called me and I want to hear your voice. प्रभु ने बहुत बार मेरे को बुलाया है, God called me many times मैं उसका शब्द को समझता हूँ। and I recognize His voice. मेरा सेवकाई के आरंभ में And in the beginning of my ministry, मैं अपने घर में सो रहा था केरल में। I was sleeping in my hometown Kerala. वो आधी रात का समय And in midnight, मेरा पिताजी बाहर से आ गए। and my father came from outside. मैं देख रहा स्वप्न जैसा मैंने देख रखा है। So like a dream, I'm seeing it. वो बाहर से आ रहा है And my father is coming from outside. और मेरा हमारा
घर का आंगन में खड़ा हो गया, and at the balcony of our house he is standing, और मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, and he is taking my name and calling me मेरा out. नाम सोमन करके मतलब बड़ा मीठी आवाज में बुलाया। My father is taking my name Soman in a very sweet form and calling me और out. मैं आंजी बोलकर एकदम मैंने जाग गया। And I said, yes, father, and I got up from my bed. तो मैं सोचा ये आधी रात को मेरे पिताजी कैसे बाहर गया, And I was thinking that in this midnight, how did my father go out? थोड़ा सा खान लगाने से And when I was attentive, मेरा पिताजी दूसरे कमरे में जो अंधेरा मारकर सो रहेगा, and in the neighboring room, my father is snoring and sleeping. मुझे मालूम हो कि ये बुलाया मेरा पिताजी नहीं, मेरा स्वर्गीय पिता मुझे बुलाया। So I realized that this was not my father who called, but it was my heavenly father. वैसे ही फिर मैंने बैठकर प्रार्थना करना शुरू हो गया। Then I sat up and I prayed. तो प्रभु मुझे बता दे, Oh God, tell me, तूने मुझे बुलाया है। you have called me. उन दिनों में मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, And those days I didn't have much knowledge, लेकिन मैं बैठकर प्रार्थना किया। but I sat and prayed. वैसे आपको सबको परमेश्वर बुलाते हैं, So likewise, God calls each and every one of you. मरियम को कहते हैं, And God is telling to me आया हुआ है। that teacher has आज हमारा मध्य में प्रभु है। And today in our midst the Lord is there. प्रभु ने कहा मेरे नाम से 2 या 3 जन जहां पर इकट्ठा होते हैं, Because the Lord said, in my name where 2 or 3 people are gathered, तो उनका मध्य में मैं होता हूँ। I'm there in their midst. परमेश्वर प्रभु हमारा मध्य में है, And the Lord is among us, वो बुला रहा है, and is calling unto us. वो बुलाने से ही आप इधर आया है, And He has called us, therefore you are वो sitting here. छूने से ही आप आए हैं। He touched us, that's why we हम come सब here. उसका बुलाए हुआ बेड़े हैं, And we are all His sheep called by हम Him. उसका लोग हैं, And we are His people. वो हमें विश्वास करना है। And that we should believe. आइए हमें प्रार्थना करें। Let's pray. प्रभु का मेज में हमें सहभागिता हो The जाएंगे। table of the Lord is before us. तो प्रभु का बुलाहट को हमें पहचाने के लिए प्रभु ने हमें मदद करी। And may God help us to recognize His calling. हालेलुया, हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें, Let's close our eyes हमें प्रार्थना करें। and let's pray. प्रभु का मेज से My soul मेरा शरीर and my body, वो पूरा पवित्र हो जाए, and let it be sanctified तेरे रक्त से मुझे धोले and प्रभु, wash me by thy blood मुझे पवित्र कर, and make me holy मेरा बातचीत में, in my thought, मेरे चाल चलन में, in my action, मेरे काम में and in my work. जो कुछ गलती हो गया, Whatever I sin, तूने क्षमा, oh God, forgive me मेरा मेज से सहभागिता होने के लिए and for me to participate in your table. प्रभु जी तूने मुझे मदद कर। Oh Lord, make me worthy. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise you, स्वर्गीय Jesus. पिता परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद करते हैं। Father, in the name of Jesus, today we thank you. फिर से एक बार हम तेरे उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। Once again, you have given us this opportunity to come before you. प्रभु जी अल्प समय आपका वचन से सुना। Father, we heard from your word for a short time. प्रभु आप हमारे मध्य में आया हुआ है, Oh Lord, you are in our midst, तेरा वचन से हमें सुन रहा है, and we are hearing from your word. ये तो हमको बुला रहा है, Because you are calling to us. तेरा बुलाहट को पहचाने में प्रभु जी हमको मदद कर, And God, help us to recognize your calling today. ताकि तेरा शब्द सुनकर तेरा पीछे अनुगमन करने के लिए प्रभु जी तूने हमें मदद कर, So that we can hear your voice and we can follow you. जो भाई बहन बच्चे लोग आए, All the brothers and sisters and children that have come, सबको तूने आशीर्वाद दे, may God bless everyone. हमारे जरूरतों को पूरा कर, Oh God, fulfill our needs. हमारे पापों को क्षमा Oh कर। God, forgive our sins. प्रभु तेरा मेज में हमें आ रखा है, Oh God, we come to your table today. तूने हमें शुद्ध कर दे प्रभु, Oh God, sanctify us. तूने हमें आशीर्वाद दे। Oh God, bless us. प्रार्थना सुना है, धन्यवाद हो। And thank you for answering our prayers. यीशु के नाम में मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର କାରଣ ଯେତେ ଦୂର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କର ଓ ଏହି ପାନ ପାତ୍ରରୁ ପାନ କର ସେତେ ଦୂର ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ
ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଆଉ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଏହି ରୁଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ସେ ଆପଣା ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ ଓ ପାନ କରେ ଏହି ହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ ପୁଣି ଅନେକେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି நான் உனக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது என்ன நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையா இருக்கிறது நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்ன நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள் இப்படி இருக்க எவன் அபாரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பார் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன் என்னத்தினாலெனில் அபாரமாய் போஜனம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜன பானம் பண்ணுகிறான் இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதிகளுமாய் இருக்கிறார்கள் அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो इसी रीति से उसने बैल के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लोह का अपराधी ठहरेगा इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो. Thanks be to God. So प्रभु का मेज एक आज्ञा and the table of the Lord is a command for us. So नया नियम का उपदेश में आज्ञा में सब विश्वास है. And in New Testament teaching all is faith. लेकिन दो आज्ञा है वो कर्म, but two commandments are sacraments. एक है बपतिस्मा, one is baptism, वो कर्म है वो करना, and that is a work that we have to do. दूसरा है प्रभु भोज, and second is Holy Communion, वो भी करना है, and that also we have to do. ये दोनों कर्म है, and these both are works. लेकिन बाकी 5 उपदेश वो सब विश्वास से करते हैं, but rest of the 5 teachings they are faith based. So जो लोग विश्वास का बपतिस्मा लिया, so those who have taken the water baptism, तो वो लोग प्रभु भोज लेते हैं, and they take the Holy Communion. तो प्रभु भोज सब लोगों के लिए प्रभु ने रखा नहीं है, and Holy Communion is not for everyone. जो लोग ठीक के भाव से चलते हैं उन लोगों के लिए, and those who walk uprightly it's for them. क्योंकि का अगर कोई अनुचित रीति से प्रभु का मेज से खाएगा तो, and because it says here if anyone partakes of it in an unworthy manner, उसका 27 वाक्य में लिखा है, verses 27 says अनुचित रीति से खाएगा तो दोषी ठहरेगा, and if one consumes unworthy mannerly then they might be guilty. प्रभु का मेज से खाना बहुत जरूरी है, and it's very important to partake of the table of the Lord. क्योंकि यूहन्ना 6 का 53 में ऐसा कहते हैं, because John 6:53 says मेरा शरीर से तुम जब तक खाएगा नहीं, रक्त से पिएगा नहीं, तुमको जीवन नहीं. Until and unless you partake of my body and of my blood, you have no life in you. और मेरा मांस से खाएंगे, रक्त से पिएंगे, उसका अंदर
जीवन है। And when you partake of my body and my blood, you have life in you. और 6 का 53, 54 में कहते हैं। And John 6, 53 and 55 says so. इसलिए ये प्रभु ने कहा, उपदेश दिया। And these are the teachings that Jesus gave. मेरा शरीर खाने का योग्य है, And my body is worthy to eat. मेरा रक्त पीने का योग्य वस्तु है। And my blood is worthy to be drunk. इसलिए प्रभु ने अंतिम समय में जो रोटी उठाकर धन्यवाद कर शिष्यों को दिया। So in the end time, Jesus took the bread and gave thanks to his disciples. और इसी में से कहा, नया नियम में मेरा शरीर है। And he gave it to his disciples and told them that take, eat from it. This is my body in the new covenant. तो उसका बाद कठोर उठाकर धन्यवाद कर दिया। After that, he took the cup, gave thanks, and gave it to his disciples. इसी में से पियो, Drink from it. ये नया नियम में मेरा रक्त है। In the New Testament, this is my covenant. बहुतों का पापों के लिए बहा देते हैं। And it's been shed for many. हमारे पापों के लिए यीशु ने रक्त बहाया। And for our sins, Jesus shed his blood. जो गेत्सेमने से लेकर काल्वरी क्रूस तक यीशु का मृत्यु का समय तक जितना दंड होगा वो सब हमारे लिए। And from the Garden of Gethsemane to the Calvary cross, Jesus Christ, all the sufferings and humiliation that he suffered, it was for our वो sake. अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। He destroyed his body piece by piece. वो अपने रक्त आखिरी बूंद तक बहा दिया। And till the last blood drop, he shed his blood. आज हमें उसका शरीर का सहभागी होने के लिए, And today he gives us the privilege of partaking of his body. 54 में जो यूहन्ना 6 का 54 में ऐसा लिखा है। And John 6:54 says like this. बड़े जोर से डांस करते हो तो गाओ कीजिए। 6 का 54। पढ़िए। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोह पीता है, अनंत जीवन उसी का है। बस। என் மாம்சத்தை புசித்து என் இரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. बस जे मोर मांस भोजन करे और मोर रक्त पान करे से अनंत जीवन प्राप्त करे। जो मेरा मांस खाएंगे, रक्त पिएंगे, अनंत जीवन उसी का है। Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. तो हमें ये से भोजन करना, And so we have to partake of this table. लेकिन अनुचित रीति से नहीं करना। But not in an unworthy. हमारे जीवन में पाप रहकर And in our life when sin is प्रभु residing, का मेज से सहभागिता नहीं कर सकते हैं। we cannot partake of the table of God. करने से हम दोषी ठहरेंगे, If we do, then we are guilty. हम दुर्बल हो जाएंगे, We may become weak. हमें रोगी हो जाएंगे, We may become sick. हम मर भी जा सकते हैं। And we may even die. अभी अगर आप अनुचित रीति में से खाएगा पिएगा, And if now you take in an unworthy manner, एकदम हमें ये तीनों काम नहीं होते हैं। instantly maybe we may not go through all these three stages. आस्ते आस्ते शरीर दुर्बल हो जाएगा, Slowly our body may become weak. आप रोगी हो जाएंगे, And you may become sick. तो डॉक्टर के पास जाएगा And you may go to the और doctor. जान जाएगा बाल बोले तुम्हें कोई रोग नहीं And है, when he diagnoses you, he will say that you have no problem. लेकिन इसका कारण क्या है But what is the ये reason? आपको मालूम नहीं होगा। And you may even not know it. काफी दिन पहले Because many days आप ago, अनुचित रीति से प्रभु भोजन से खाने का कारण because you ate from the table of God in an unworthy manner, आप दुर्बल हो गया, you became weak in your आप body. रोगी हो गया, You became sick in your body. आप फिर भी आप अनुदान में नहीं आ गया, And still if you are not having a repentant life, तो आप ऐसे रहकर मर जाएंगे। then you keep on going like that and you perish one day. कारण मालूम नहीं होगा, And your reason is not revealed. तो जवानी जीवन में चले जाएगा। And in your youth you pass away. क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, Because the word of God says, अनुचित रीति से खाए तो हम दोषी ठहरेंगे, and if you partake in an unworthy manner, you will be held guilty. तुम दुर्बल हो जाएंगे, You will become weak. रोगी हो जाएंगे, You will become sick. मर जाएंगे, And you will die. इसलिए हमारे जीवन में अपने आप को जांचना है। So in our life, let's introspect ourselves. तो ये पवित्र मेज से, That from the holy table, तो होली कम्युनियन में इसको कहते हैं, and we call it Holy Communion. तो ये पवित्र मेज है। And this
is a holy table और before us. इसी में से सहभागिता करने वाला व्यक्ति भी पवित्र होना है। So those who partake of it must also be holy. इसलिए हमें अपने आप को जांच ले। So let's introspect ourselves. हमें प्रार्थना करें। Let's pray. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Jesus. सब लोग थोड़ा समय अपने आप को जांच ले। And let's everyone अपने examine पाप ourselves. अपने पाप को स्वीकार करें। And let's confess our sins. आपका बातचीत में, In our talks चाल चलन में, and in our walks सोच विचार में and in our thoughts. कुछ गलती हो गया तो If there is any wrongdoing, उसे माफी मांगे। let's ask Him forgiveness. मेरे जीवन में ऐसा हो गया, Oh Lord, in my life such and such happened. तूने मुझे शुद्ध कर, Oh Lord, sanctify me. मुझे पवित्र कर। मेरा चाहते हैं वो सब अपने अपने जगह में खड़ा हो जाए। Those who want to partake in the Lord's table, I request you to stand in your places. Praise the Lord। जो उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, विश्वास का बपतिस्मा और पवित्र वायु में चल रहा है, वो लोग जरूर ले सकते हैं। Those who are born again, those who are taken water baptism, and those who are leading a holy life can partake of the Lord's table. अच्छे लोग बातचीत नहीं करना। हालेलुया, प्रार्थना का साथ रहे। Let's be in an attitude of परमेश्वर का उपस्थिति हमारा मध्य में आ जाए। and may the presence of God be in our midst. एक साधारण बात नहीं है। It's not an ordinary thing. प्रभु ने बहुमूल्य खून हमारे लिए And बहाया। Jesus shed His precious blood for us. इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहे। And so let's be in an attitude of prayer. मुंह खोल कर प्रभु का स्तुति करें। Let's open our mouths and pray. प्रभु तूने अपना मांस शरीर हमारे लिए तोड़ा है। Oh God, you broke your body and oh God, your blood for तूने us. अपना रक्त हमारे लिए बहाया है। And you shed your blood for us. हम उसका सहभागिता करने के लिए आ रहा है। And today we come to partake of it. हालेलुया, हालेलुया, Praise you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, Praise Jesus. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। हमारा सूर्य पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, फिर से एक बार हम तेरे उपस्थिति में आ रहा हूं प्रभु। आज से 2020 साल पहले तूने जो नमूना दिखाया, वो नमूना को पूरा करने के लिए प्रभु जी हम तेरा सम्मुख में आ रहा है। प्रभु जी तूने कहा जब तक मैं नहीं आएगा तब तक तुम्हें किया करो। प्रभु जी अभी तक तूने दूसरा बार आया नहीं, हमें विश्वास करते हैं प्रभु जी तेरा शरीर से सहभागिता करने के लिए प्रभु जी हम आ रहा है। प्रभु जी ये रोटी को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। ये रोटी को तूने शुद्ध कर, इसको तूने आशीर्वाद दे। सब लोग इसी में से खाकर अनुग्रह पाने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ये रोटी को मैंने आशीर्वाद देते हैं। प्रभु इसी में से लोग खाकर तेरा अनुग्रह पाने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। तूने कहा जो लोग मेरे शरीर से खाएगा उसको आनंद जीवन उसी क्या है। आप प्रभु जी सब लोग आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु जी मदद कर। प्रार्थना सुना है, धन्यवाद हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिस रात को यीशु को पकड़ाया गया उसी रात को यीशु ने रोटी लिया, धन्यवाद कर कर तोड़ा और कहा इसी में से खाओ, नया नियम में ये मेरा शरीर है। जब तुम इसी में से खाते हो मेरा आगमन तक मेरा मृत्यु का प्रचार करते हैं। इसलिए मनुष्य कोई भी अनिश्चित रीति से इसी में से खाएगा तो वो दोषी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच कर इसी में से खाए। जिस रात को यीशु को पकड़ाया गया उसी रात को यीशु ने रोटी उठाया, धन्यवाद कर कर तोड़ा और कहा इसी में से खाओ, ये नया नियम मेरा शरीर है। जब तुम मनुष्य का पुत्र का मांस खाते हो से उसका आनंद जीवन उसी क्या है। और जो लोग मनुष्य का पुत्र का मांस से नहीं खाएंगे, रक्त से नहीं पिएंगे, उसको आनंद जीवन नहीं है। इसलिए जो लोग खाते हैं और उसका रक्त से पीते हैं, आनंद जीवन उसी क्या है। इसलिए सब लोग अपने आप को जांच कर खाना है। अगर कोई अनुचित रीति से खाएगा तो वो दोषी ठहरेगा। गीत गाए। हम खाए हो सदा
कटोरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, रोटी खाने के बाद तूने कटोरे उड़ाकर धन्यवाद कर कर शिष्यों को दिया, इसी में से पियो, ये नया नियम में मेरा रक्त है। जब मैं तेरा रक्त से पिएंगे अनंत जीवन उसी क्या है, तेरा वचन में लिखा है। प्रभु ये कटोरे को तेरा हाथ में देते हैं, इसको तूने शुद्ध कर दे प्रभु जी। कालवरी क्रूस से बहा हुआ रक्त का बूंद ये कटोरे में उंडेल दे, ताकि प्रभु जी ये तेरा रक्त बन जाए। प्रभु इसी में से तेरे लोग पीकर ताकत पाने के लिए, लोग चंगा होने के लिए प्रभु जी तूने मदद कर। अगर कोई रोगी है ये पियो तो वो सामर्थ्य पाए, चंगाई पाए। प्रभु जी कटोरे को तूने आशीर्वाद दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कटोरे को मैंने आशीर्वाद देकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इसको अनुग्रह दे, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिस रात को यीशु को पकड़ाया गया उसी रात को उसने रोटी उड़ाया, धन्यवाद कर दिया, शिष्यों को दिया। उसका बाद उसने कटोरा उड़ाता, धन्यवाद कर शिष्यों को दिया, और इसी में से पियो, ये नया नियम में मेरा रक्त है जो बहुतों का पापों के लिए बहाया जाते हैं। और रोटी और दागरस तो बच गया, ये गवाह देते हैं और भी लोग हैं उसमें सहभागी करने के लिए। सो हमें प्रार्थना करें लोग और भी आकर इसमें सहभागिता होने के लिए प्रभु ने सहायता करे। आइए हमें पढ़े, सब मालूम 3 भाषा में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट थेसलोनिकियर चैप्टर 5 वर्स 23 से लेकर 28 तक जोर से पढ़ना है, उड़िया, तमिल, हिंदी। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्हाମାନଙ୍କୁ संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु, पुणी आम्भମାନଙ୍କୁ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ आगमन निमंते तुम्हाମାନଙ୍କ आत्मा, प्राण, शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ। जे तुम्हाମାନଙ୍କୁ आह्वान करियछंती से विश्वस्त, से ताहा मध्य साधन करिवे। हे भाई माने, आम्भମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना कर, समस्त भाई को पवित्र चुंबन देई नमस्कार कर। समस्त भाई को निकट रे ही पत्र पाठ कराइबा निमंते मु प्रभु को नाम रे तुम्हाମାନଙ୍କୁ शपथ देउछि। आम्भମାନଙ୍କ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह तुम्हाମାନଙ୍କ सहवर्ती हेउ। Praise the Lord. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாய் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. உங்களை அழைக்கிறவர் உண்மையுள்ளவர், அவர் அப்படியே செய்வார். சகோதரரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். சகோதரர் எல்லாரையும் பரிசுத்த முத்தத்தோட வாழ்த்துங்கள். இந்த நிருபம் பரிசுத்தமான சகோதரர் யாவருக்கும் வாசிக்கப்படும்படி செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் பேரில் ஆணையிட்டு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக. ஆமென், आमीन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। Praise the Lord. Hallelujah. So हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, तो हमारे परमेश्वर को सेवा करने वालों को शांति मिलते हैं। And those who serve our Lord get peace. So हमारा शरीर, आत्मा, शरीर, प्राण यीशु का आगमन तक निर्दोष रहना है। Our body, spirit and soul should remain innocent till the coming of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पवित्र चुंबन से विदा करने के लिए पौलुस इधर कहते हैं। And Paul says to depart with a godly kiss. पवित्र चुंबन and holy kiss. यूदा का चुंबन भी वो उसको पवित्र नहीं बोल सकते। And we cannot say the kiss of Judah or holy kiss. So वो नहीं, मगर हमारा हृदय एक दूसरे से मिलना, and but our heart should be good with others. जैसे प्रभु का वचन में लिखा है, मेरा हृदय तेरे साथ जैसे मिला हुआ है वैसा है तो तू हाथ मिलाओ। And like the word says, if my heart is good towards you, then shake hands. So
माने हमारा हृदय एक दूसरे से मिलना, Means our heart should be good with each other. हमें विभिन्न भाषा वाले दर है, We are people of different हम languages. विभिन्न लोग हैं, We are different people here. लेकिन हम सब एक बाप का बच्चे लोग हैं। But we are the children of one हम Father. एक रोटी के सहभागी हैं, And we are the fellowshippers of one ये bread. मेज वो बताते हैं, And what the table says so. हमें एक बाप का और एक खानदान का लोग हैं, That we are the children of one Father and one family. हमारा स्वर्गीय पिता का संतान है। And we are the children of our Heavenly Father. प्रार्थना करें, Let's pray. हमारा आंखों को बंद करें। Let's close our eyes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका सम्मुख में आने के लिए मौका दिया, आपका मेज से सहभागी होने के लिए मदद किया। प्रभु जी, और भी तेरा मेज से बचे हैं प्रभु, इसके लिए सहभागी होने के लिए पारादी में लोग है प्रभु, वो लोग भी इकट्ठा होने के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तूने में सहायता कर, आशीर्वाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।